آج ویو 360 میں امریکہ میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز، حکومتی عہدیدار کئی نئے اور سخت اقدامات اٹھانے پر مجبور۔ موسمیاتی تبدیلیاں، ٹڈی دل کے حملوں اور کورونا لاک ڈاؤنز کی وجہ سے پاکستان کا زرعی شعبہ شدید متاثر۔ شاید اگر یہ صورتحال ایسے ہی بڑھتی رہے تو آنے والے وقت میں پاکستان میں بھی ہم فوڈ کرائسس فورسی کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں گے ایک ایسی نئی ایجاد کے بارے میں جس سے آپ اپنی جلد کی لرزش تک سن سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے کیسز اور اموات میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ کچھ بڑے شہر کووڈ-19 سے بری طرح سے متاثر ہوئے ہیں، جہاں حکام پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ سخت اقدامات اٹھانے کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ سرکاری عہدیدار مجبوراً ایسے اقدامات بھی اٹھا رہے ہیں جس سے پہلے وہ کافی حد تک کتراتے ہوئے نظر آتے تھے۔ مزید بتائیں گی نیلوفر مغل۔ امریکہ بھر میں وفاقی اور مقامی حکومتوں کو کورونا کی وبا کے تیز پھیلاؤ کو روکنے کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس کے میئر کا کہنا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ عوام کو گھر پر رہنے کی ہدایات دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ان کے مطابق لاس اینجلس شہر میں کاروباروں کو قبل از وقت کھول دیا گیا تھا۔ ادھر ریاست کے گورنر نے ریسٹورانٹس کے اندر کھانا کھانے پر پھر سے پابندی لگا دی ہے۔ گزشتہ ہفتے ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن کے میئر نے کورونا کیسز میں اضافے کے بعد 2 ہفتے مزید شٹ ڈاؤن کی تجویز پیش کی۔ فلوریڈا کے میامی بیچ علاقے میں پولیس نے ہفتے کی رات ایک نیا کرفیو نافذ کیا۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ جگہ جلدی بند کرنے سے لوگ پارٹیز کم کریں گے اور اپنے گھروں یا اپنے ہوٹل واپس جا سکیں گے، اور اس سے ان کے ارد گرد اور ہمارے شہر کے لوگ محفوظ رہ سکیں گے۔ کانگریس میں میامی بیچ کی نمائندگی کرنے والی ڈونا شلیلا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مزید سخت اقدامات کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ یہ مکمل طور پر قابو سے باہر ہے۔ ہمیں فلوریڈا کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے گورنر سے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے اور ہم نے اس سے بھی آسان کام کرنے کو کہا ہے، اور وہ یہ کہ سب کو ماسک پہننے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے۔ بڑھتے ہوئے کورونا کیسز سے وہ گورنرز بھی ماسک پہننے کے لازمی احکامات دینے پر مجبور ہو گئے ہیں، جو پہلے اس بارے میں ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ ہم نے ریاست بھر میں ماسک پہننا لازمی قرار دینے کا مزید اقدام اٹھایا ہے۔ میں ایسا نہیں چاہتا تھا، لیکن ایسا کرنے سے ہمارے ہسپتالوں پر دباؤ کم ہو سکتا ہے۔ اس سے کیسز میں کمی لانے کی امید مل سکتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ ملک بھر میں ماسک پہننے کا حکم نہیں دے رہے ہیں۔ اتوار کے روز فاکس نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے اس وبا کے ابتدائی دنوں میں ماسک سے متعلق متضاد مشوروں کا حوالہ دیا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ ماسک مت پہنو، پھر اچانک سب کو ماسک پہننا پڑا، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ ماسک بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ میں ماسک پہننے پر یقین رکھتا ہوں۔ میرے خیال میں ماسک بہتر ہے، لیکن میں اس کا فیصلہ گورنرز پر چھوڑتا ہوں۔ وائرس کے معاشی نتائج سے نمٹنے کے لیے کانگریس کی طرف سے اس ہفتے ایک اور کورونا وائرس سٹیمولس پیکج پر کام کی توقع ہے۔ امریکی قانون سازوں پر دباؤ ہے کہ وہ تیزی سے کام کریں، کیونکہ ان کی اگست کی چھٹی قریب آ رہی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ سمر بریک یا گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کے لیے ایک بڑی ٹریٹ ہوتی ہیں، لیکن اس بار شاید اس کا وہ مزہ نہیں رہا۔ کورونا کی وجہ سے چھٹیاں ہیں کہ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہی، اور آگے بھی شاید گھروں سے ہی کلاسز لینی پڑیں۔ امریکہ میں بھی حال کچھ ایسا ہی ہے۔ نیا تعلیمی سال شروع ہونے کو ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں اسکول کھولنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، لیکن والدین اور اسکولوں کی انتظامیہ میں یہ بحث جاری ہے کہ آیا بچوں کو اس موسم خزاں میں اسکول کے کلاس رومز میں پڑھایا جائے یا وہ گھروں سے ہی اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھیں۔ ریاست ورجینیا کی فیئرفیکس کاؤنٹی میں والدین کچھ دن گھر اور کچھ دن اسکول یا پھر مکمل طور پر گھر سے پڑھنے میں سے کسی ایک آپشن کو چن سکتے ہیں۔ مشیل اور جانا نے اپنے 9 سالہ بیٹے کے لیے پورا ہفتہ گھر سے اور 11 سالہ بیٹی کے لیے 2 دن اسکول اور 3 دن گھر سے پڑھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی کلاس روم کے ماحول سے بہت سیکھتی ہے۔ وہ اپنے کچھ کلاس فیلوز سے بہت قریب ہے۔ میرے خیال میں اگلا پورا سال اسے ان سے دور رکھنا درست قدم نہیں ہوگا۔ آن لائن پڑھائی کے طریقہ کار سے مانوس ہونے میں وقت لگا۔ بعض دفعہ ڈیجیٹل کلاس روم میں اس کی آواز کہیں دب سی جاتی۔
We don't have anybody who's at high risk in our household. इस फैसले की एक वजह यह है कि हमारे घर में किसी की सेहत को बज़ाहिर कोई खतरा नहीं। हमारे खानदान वाले यहाँ करीब नहीं रहते, लिहाजा उनसे कम ही मिलना होता है। मेरे ख्याल में क्लासरूम्स में तादाद को कम करना, रिसेस ना करना और मास्क पहनना सब अच्छे इकदाम हैं। 2 बच्चों की वालिदा मरियम इसी डिस्ट्रिक्ट में रहती हैं। उन्होंने अपने बेटे के लिए 4 दिन ऑनलाइन तालीम का ऑप्शन चुना है। उनकी बेटी स्कूल जाना चाहती है, जो मरियम के लिए परेशान कुन है। And I worry about what to do with my parents. मैं ज़ाती तौर पर सेहत के नुक्ता नज़र से परेशान हूँ, क्योंकि मेरे वालिदैन उम्र रसीदा हैं और बच्चे उनके बहुत करीब हैं, और फिर उनके हमसाए में एक खातून डॉक्टर हैं जो अपने मरीजों को मजीद किसी खतरे में नहीं डालना चाहती, और एक के शौहर को दिल की बीमारी है। असातिज़ा के पास भी ये इख्तियार है कि वो ऑनलाइन और स्कूल जाकर पढ़ाने में से किसी एक का इंतखाब कर सकें। फ्रेंच जुबान की टीचर इंगर मोरान शुरू में स्कूल वापस जाकर पढ़ाने के लिए बहुत पुरजोश थीं। जैसे जैसे मैंने इस बारे में सोचा और कोविड-19 के बारे में मजीद डेटा पढ़ा तो मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ, क्योंकि बच्चे सारा वक्त तो मास्क नहीं पहने हुए होंगे। मुझे इससे खतरा हो सकता है, और फिर स्कूल की इमारत में बस ड्राइवर या ऐसे लोग होंगे जो हाई रिस्क पर हो सकते हैं। अर्लिंगटन स्कूल डिस्ट्रिक्ट ने जुज़वी तौर पर स्कूल के अंदर बिल मुशाफा तालीम के बजाय मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन लर्निंग को चुना है। मैं जिन असातिज़ा को जानती हूँ वो इस वक्त अपना फारिग वक्त ये सोचने में लगा रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन तालीम को बेहतर बनाया जाए। इसके साथ वर्जीनिया में कुछ स्कूल मुकम्मल तौर पर खोलने के लिए तैयार हैं। रियासत के जुनूब मगरबी इलाके में कई देही अजला ऐसे हैं जहां वायरस उस तरह से नहीं फैला जैसा ज्यादा गुंजान आबाद इलाकों में। वो स्कूल्स जो बिल मुशाफा तालीम के लिए खुलेंगे वो नए असूल व कवायद वज़ा कर रहे हैं, जिनमें हर वक्त मास्क पहनना, लंच क्लासरूम में करना और करीबी राब्ते वाली खेलों से परहेज करना शामिल है। हमारी स्कूल डिवीजन को महकमा तालीम को 2 मंसूबे जमा करवाने हैं। पहला सेहत से मुतालिक है कि हम वायरस से कैसे निमट रहे हैं और सफाई को कैसे यकीनी बना रहे हैं, और तालिब इल्मों और उस्ताज़ा के दरमियान समाजी फासले को कैसे यकीनी बना रहे हैं, और दूसरा मंसूबा हिदायत से मुतालिक है। इसी तरह के मंसूबे अमेरिका भर के स्कूलों में बनाए जा रहे हैं। स्कूल इंतजामिया, प्रिंसिपल्स, असातिज़ा और वालिदैन अपनी अपनी सहूलत के पेश नज़र इनमें से इंतखाब कर सकते हैं। बाज़ रियासतें मुकम्मल तौर पर स्कूल खोलने का सोच रही हैं। ततियाना रोशको और लेसिया बेगलात्स के साथ सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए और दुनिया भर की अहम खबरों के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA Urdu। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार में तकरीबन 20% हिस्सा ज़राअत के शोबे का है, लेकिन मईशत का ये अहम सुतून माहौलियाती तब्दीलियों के बायस कमज़ोर होता जा रहा है। न सिर्फ फसलों की पैदावार मुतासर हो रही है, बल्कि उनकी काश्त और कटाई करने वाले दिहाड़ीदार मजदूर भी बेमौसमी बारिशों और दर्जा हरारत में इजाफे के सबब मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तस्वीर का एक रुख आपके लिए लेके आए हैं ज़िला ओकाड़ा के हुजरा मुकीम शाह से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे नवीद नसीम। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से मौसम में मामूल से हटकर उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। इस साल मौसम सरमा में मामूल से ज़्यादा सर्दी और बारिशें देखी गई, जबकि मौसम गर्मा में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा हुआ। दोनों तरह के हालात से फसलों की काश्त और कटाई के मराहल बुरी तरह मुतासिर हुए और मजमूई पैदावार को भी नुकसान पहुँचा। क्लाइमेटिक इफेक्ट है वो ओवरऑल जो है वो ज़राअत को नुकसान पहुँचा रहा है, लेकिन अब उसमें थोड़ा थोड़ा टाइम जो है वो शिफ्टिंग, जैसे अर्ली मॉनसून बारिशें हैं, उन बारिशों की वजह से गंदम की फसल को नुकसान हुआ। गवर्नमेंट की गंदम की ख़रीद पूरी टारगेट पूरा नहीं हो सका, प्रोडक्शन हमारी कम हुई। तो हम शायद अगर ये सूरत हाल ऐसे ही बढ़ती रहे तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी हम फूड क्राइसिस फोरसी कर सकते हैं। माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से होने वाली बेमौसमी बारिशों और आंधी तूफान से न सिर्फ खेतों में तैयार फसलों को नुकसान पहुंचता है, बल्कि खेतों में काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूर भी मुतासिर होते हैं। बेमौसमियां बारिशां नाल नुकसान ही हुंदा है भी फसलां डुੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, मकइयां विच गल ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, मकइयां हैं
ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਗਲ ਗਈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਟੱਕਰਨਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਬੱਚੇ ਘਰ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਨੀ ਕਮਾ ਕੇ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਕਰ ਗੋਨੇ ਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਲੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਝਿੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ गई, इंज हो गया। बारिशों नाल तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से दर्जा हरारत में होने वाली तब्दीलियों को मद्देनज़र रखते हुए अब फसलों की काश्त और कटाई के औकात में तब्दीली लाना होगी। हम कर ये सकते हैं कि अडॉप्टेशन करें, ऐसी वैरायटीज़ को हम सिलेक्ट करें कि जो वैरायटीज़ इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में बेहतर यील्ड दे सकें। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि एक है NO2 एक वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज है, और उसका मेन सोर्स जो है हमारी फर्टिलाइजेशन है, हमारी फर्टिलाइजर्स है उसकी वजह से, ठीक है। उसमें ये होता है कि हम जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालते हैं वो हम कम डालें, ताकि और ऐसी वैरायटी यूज़ करें जो ज़्यादा अपटेक ले सकें, जिसको हम कहते हैं कि नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी की ज़्यादा हो। इसकी वजह से हम ख़त्म तो नहीं कर सकते इफेक्ट्स को, लेकिन उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। 18वीं तरमीम के तहत ज़राअत का शोबा सूबाई हुकूमतों के कंट्रोल में है। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए अब तक पंजाब के महकमा ज़राअत की जानिब से कोई जामे हिकमत अमली सामने नहीं आई, जबकि वफाकी वज़ारत माहौलियात का कहना है कि इनकी जानिब से 10 अरब दरख्त लगाने के मंसूबे पर काम जारी है, मगर इसके मुस्बत असरात सामने आने में वक्त लगेगा। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, हुज्जा शाह मुकीम, ज़िला उकाड़ा। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों का एक असर इस साल टिड्डी दल की सूरत में हुआ। मुल्क के कई हिस्सों में टिड्डी दल कई माह से फसलों को तबाह कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक अगर पाकिस्तान की 25% ज़रई पैदावार भी टिड्डी दल से मुतासर होती है तो मुल्क में अजनास की कीमतों में इजाफे के साथ साथ पाकिस्तानी मईशत को $5 अरब तक का नुकसान हो सकता है। इस मसले से निमटने के लिए मरकज़ी हुकूमत क्या इक़दाम उठा रही है, इस बारे में वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान की बात हुई वफाकी वज़ीर बराए खुराक सैयद फ़खर इमाम से। आइए देखते हैं। हमें उसके लिए भी पूरा एक मंसूबा बनाया है। ये जो साल शुरू है तकरीबन 26 अरब रुपए का, 26 बिलियन रुपीस, जिसमें से 14 अरब होगा वफाक का, 12 अरब सूबाई हुकूमतों की कंट्रीब्यूशन होगी। पर उसमें फिर एयरक्राफ्ट स्प्रे के जहाँ ये आते हैं, ब्रीडिंग इनकी होती है अमूमन लोकस्ट की, ये 27 साल के बाद है, 1992 के बाद है। पहले ये होता था कि यहाँ से आते थे राजस्थान से और फिर वापस चले जाते थे। अक्टूबर नवंबर में जा रहे थे तो बलूचिस्तान में बारिशें हो गई, वही क्लाइमेट चेंज हुआ। निम्स के बाद ये अडल्ट होते हैं आके मुख्तलिफ जगह पे, और उन्होंने कुछ डैमेज किया, अभी भी हुआ चारों सूबे में। इस वक्त भी बलूचिस्तान के जो 33 अजला हैं उसमें तकरीबन सब में ये पाया जा रहा है। हमारे पास तकरीबन 5 हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान आर्मी ने दिए, जिसको रिजस्ट करके उसको इस्तेमाल किया गया। 3 बीवर्स हैं हमारी मिनिस्ट्री में, जिसके अब एक पायलट थे, 2 नहीं थे, उनको तकरीबन ट्रेन कर लिया है। और उसके अलावा एक जहाज़ वो ऑन रेंट लिया गया था। 11 और जहाज़ लिए जा रहे हैं, 5 ऑन रेंट और 6 की ख़रीदारी। ये चंद माह में इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ आ जाएंगे। हमारे एक ज़माने में 20 जहाज़ होते थे, अब 20 जहाज़ हम दोबारा बिल्डअप कर रहे हैं, निस्फ तकरीबन हो गए हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर्स भी तो कोशिश हमारी यही है कि वो भी हों, माइक्रोनेस ऑन द ग्राउंड भी हों, स्प्रेज भी हों, ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, हमारा जो डिपार्टमेंट प्लांट प्रोटेक्शन है वो बिल्कुल नैरो हो गया था, 31 हमारे पे माहिरीन रह गए थे। अब हम इमरजेंसी में 200 और रिक्रूट कर रहे हैं। एक लोकस से 200 से 1100 बनते हैं। पाकिस्तान में जैसे आप जानते हैं कि 20 से 25% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो वर्किंग क्लास तबका है उसको दिक्कत हो, इसलिए हम अभी से उसको प्लान करके और स्टेबलाइज करना चाहते हैं जितनी भी हमारी गंदम की मार्केट है। पिछले 20-25 साल से शायद हमने ज़राअत की तरफ उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी हमें देनी चाहिए थी। फिर एक और जो हमारी सोच है कि ब्रांडिंग हो हमारी। हमने यहाँ कवानीन ही नहीं बनाए थे, अब हमने पास किया 20 साल के बाद आके प्लांट ब्रीडर्स एक्ट और सीड एक्ट को हमने अपग्रेड किया। इसकी तरफ से जैसे बासमती इंडिया ने रजिस्टर कर ली, आप इमेजिन करें हम हालांकि हमारे अब हम उसको दोबारा ला रहे हैं। ऐसे तकरीबन हम एग्रो प्रोडक्ट्स 100 के करीब
जिनकी हम ब्रांडिंग करेंगे, जैसे चेरीज़ हैं, गिलगित की चेरी है, बलूचिस्तान की चेरी है, इसका टेस्ट ही और है, इसका फ्लेवर ही और है, और अगर उसको हम ब्रांड करके भेजेंगे बाहर, उसकी कीमत 30, 40, 50% ज़्यादा होगी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंतखाबात में तमाम वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद नताइज का ऐलान किया जाता है, लेकिन यहाँ अमरीका में सदारती इंतखाबात में उम्मीदवारों को हासिल होने वाले तमाम वोटों की तादाद नहीं बल्कि रियासत की आबादी की मुनासबत से मुकर्रर करदा इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती की जाती है, जिसकी वजह से सदारती उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम और तमाम तवानाई ऐसी रियासतों पर मरकूज करते हैं जिन्हें जीत कर उन्हें ज़्यादा इलेक्टोरल वोट मिल सकते हैं। इस पेचीदा निज़ाम को समझने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। है कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात दोनों उम्मीदवारों के बारे में एक रेफरेंडम है, लेकिन दर हकीकत ये 50 रियासतों में किए जाने वाले इनफरादी इंतखाबात का मजमुआ होता है, जिसमें ज्यादा आबादी वाली रियासतों के ज्यादा इलेक्टरल वोट्स मुख्तस होते हैं। दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी के अलावा अलास्का, मोंटाना, शुमाली और जनूबी डकोटा, डेलावेयर और वर्मोंट के सबसे कम यानी 3 इलेक्टरल वोट्स हैं, 1 अवानी नुमाइंदगान और 2 सेनेट के लिए, जबकि रियासत कैलिफोर्निया, टेक्सास, न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में इलेक्टरल कॉलेज के अरकान की तादाद सबसे ज्यादा है। इन तमाम रियासतों में ज्यादा अवामी वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार रवायती तौर पर तमाम इलेक्टरल वोट्स भी जीतते हैं। जीतने के लिए कुल 538 इलेक्टरल कॉलेज वोटों में से 270 दरकार होते हैं। अवामी मकबूलियत के एतबार से देखा जाए तो गुज़श्ता सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को ट्रंप की निस्बत 30 लाख ज्यादा वोट मिले, लेकिन सर ट्रंप की जीत अवामी मकबूलियत के वोटों की बजाय 6 ऐसी रियासतों से 70 इजाफी इलेक्टरल कॉलेज के अरकान की वजह से मुमकिन हुई, जिन्होंने सन 2012 के इंतखाबात में सदर ओबामा को चुना था। ताहम उन्हें यहाँ से मिलने वाले वोट हिलरी क्लिंटन से महज 80,000 ही ज्यादा थे, इसलिए उन्हें बैटल ग्राउंड यानी मैदान जंग रियासतें कहा जाता है। हालिया सालों में रियासत फ्लोरिडा, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में कांटेदार मुकाबला हुआ है। इन चारों रियासतों ने 2 बार और शुमाली कैरोलिना ने 1 बार सदर ओबामा को चुना। एरिजोना ने 90 की दिहाई से किसी डेमोक्रेट उम्मीदवार को नहीं चुना, लेकिन इन रियासतों के मज़ाफ़ाती इलाकों की तालीम याफ्ता आबादी में ट्रंप मुखालिफ ख्यालात बढ़ने की वजह से यहाँ मुकाबला सख्त हो गया है, इसलिए लोग समझते हैं कि सदर का फैसला यही 6 रियासतें करेंगी। It's helping to make those states more competitive. वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कायल कॉन्डिक राय शुमारी के उन जायजों से मुत्तफिक नहीं जो डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन की भारी अक्सरियत से कामयाबी की निशानदही कर रहे हैं। We've had very close and competitive presidential elections in the United States this century. इस सदी में हमने बहुत कांटेदार इंतखाबात देखे, मासिवाय 2008 में बराक ओबामा की 7 पॉइंट्स की जीत के, लेकिन बाकी चारों इंतखाबात बहुत कम शरह से जीते गए। इसलिए मैं रायामा के हालिया जायज़ों में जो बाइडेन की जीत के दावों से कायल नहीं। उनकी जीत फैसला कुन हो सकती है, मगर शायद इतने बड़े मार्जिन से नहीं, क्योंकि हमने ऐसा होते कभी नहीं देखा। नाकदीन के मुताबिक चंद माह बाद होने वाले इंतखाबात के लिए सर ट्रंप के पास अब भी अपनी मकबूलियत बढ़ाने के लिए बहुत वक्त है। अगर ट्रंप बाइडेन की मकबूलियत को कम करके अपने हामियों में इजाफा कर सकें, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी वो अवाम में कम मकबूलियत के बावजूद जीत गए थे, तो इलेक्शन के रोज़ अगर किसी एक उम्मीदवार ने भी 3 से 5 पॉइंट्स तक सबकत हासिल की तो असल फातेह की पेशगोई आसान नहीं होगी। स्टीव रैडिश के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। न्यूयॉर्क के मारूफ ऑर्केस्ट्रा में शामिल एक सियाफाम मौसीकार एंथनी मैकगिल ने ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक में एक मुनफरिद अंदाज में हिस्सा लिया। सोशल मीडिया पर अपनी एक वायरल वीडियो में हैशटैग टेक टू नीज के जरिए उन्होंने दीगर मौसीकारों को अलामती तौर पर घुटने टेक कर इस तहरीक के लिए अपनी हिमायत दिखाने की अपील की। कई पेशावर मौसीकारों की तरह न्यूयॉर्क फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा में पहले सियाफाम क्लैरिनेट बजाने वाले एंथनी को भी खामोशी पसंद है। अपनी खिड़की के बाहर ब्लैक लाइव्स मैटर तहरीक की आवाज़ें उन्हें परेशान करती थीं। मैंने इसे देखा, इस पर गौर किया, लेकिन बचपन से मैंने किसी मुजाहिरे में शिरकत नहीं की। मैंने सोचा सब घरों पर है, हम में से अक्सर मुत्तफिक हैं कि ये वाक़यात ठीक नहीं थे, तो फिर हम इस पर कुछ कह क्यों नहीं सकते। मेरे ख्याल में ऐसा करना ठीक है।
जून में उनकी ब्लैक एंड वाइट वीडियो #Take2Knees के साथ सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें सिर्फ मौसीकी थी, कोई लफ्ज नहीं। मैंने सबको चैलेंज किया कि वो भी इंसाफ, सच, मोहब्बत, रवादारी और इंसानियत के लिए एहतरामन घुटने टेक दें। इन तमाम बातों पर हम में से अक्सर यकीन रखते हैं। वो कहते हैं कि एक घुटना टेकना ताकतवर अलामत है, लेकिन दो टेकना मुख्तलिफ है। The image of someone taking 2 knees. दो घुटने टेकने का मतलब इबादत करना भी हो सकता है। मैंने किसी एक मतलब के बारे में नहीं सोचा था। पहले मैंने क्लैरिनेट बजाने की बजाय बेबसी से 2 घुटनों पर गिरने का सोचा था। एंथनी को अपनी इस वायरल वीडियो में मशहूर गाने अमरीका द ब्यूटीफुल के इंतखाब के लिए 2 बार नहीं सोचना पड़ा। We need to match our actions with our words. हमें अपने कौल और अमल में मुताबिकत पैदा करनी चाहिए। इस खूबसूरत गाने के अल्फाज हमें इसकी तलकीन करते हैं जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसे बजाया। बस इसमें थोड़ी उदासी का तासुर पैदा किया। हमें अपने वतन और कौम के नजरियात अपनाने के लिए अभी बहुत काम करना है। एंथनी की इस वीडियो के जवाब में यूट्यूब पर उनके मुंतखब करदा हैशटैग के साथ कई वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। सब में मौसीकी मुख्तलिफ मगर एक कदर मुश्तरक है कि वो सब ब्लैक एंड वाइट हैं। अलीना वुल्फ के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये एक अमूमी तासुर है कि इंसान के एहसासात बहुत महदूद होते हैं। जो चीज़ आंखों से देखी जा सकती है, कानों से सुनी भी जा सकती है, आवाज़ तब पैदा होती है जब किसी चीज़ में लर्जिश पैदा हो। हम इस लर्जिश को अपने कानों से सुन सकते हैं, लेकिन अब तहकीककारों ने एक ऐसा आला ईजाद किया है जिसके पहनने से जिल्द की लर्जिश को भी सुना जा सकेगा। इस नई ईजाद के बारे में तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट से। कलाई पर पहने जाने वाला ये आला जिल्द के जरिए सुनने में मदद देता है। इस आले को नियो सेंसरी ने बज़ का नाम दिया है, जो कान की तरह काम करता है। इसमें एक माइक्रोफोन है जो आवाज पकड़ता है और फिर उसे फ्रीक्वेंसी में तब्दील करके कलाई पर बंधे आले तक पहुंचाता है। इस पर मोटर्स लगी हैं, इनमें लर्जिश पैदा होती है। कलाई पर बांधने वाला ये आला माहौल में मौजूद आवाज़ों की तशरीह करते हुए उन्हें मुख्तलिफ इक़साम की लर्जिश में तब्दील करता है। कलाई पर मौजूद इस आले की मोटर में वैसी ही लर्जिश होती है जैसे एक मोबाइल फ़ोन वाइब्रेट करता है। ये लर्जिश जिल्द और फिर रीढ़ की हड्डी के जरिए दिमाग तक पहुंचती है और फिर लोग इसकी तशरीह करना सीख सकते हैं। जैसे कुव्वत बेनाई से महरूम लोग ब्रेल से पढ़ना सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही कुव्वत समात से महरूम अफराद बज़ के जरिए जिल्द पर होने वाली लर्जिशों से किसी ज़बान को सीख सकते हैं। क्योंकि किसी चीज को देखने और महसूस करने के दौरान दिमाग उसी किस्म का ताल्लुक पैदा करता है जो वो आपकी आंखों और कानों के दरमियान पैदा करता है। नियो सेंसरी का दावा है कि कलाई पर पहनने वाला ये आला सुनने वालों को एक साथ कई काम करने में भी मदद देता है। हवा की रफ्तार तेज हो और आप ड्रोन चला रहे हो तो इधर उधर नहीं देख सकते, लेकिन ऐसे में जिल्द के जरिए आप ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। इस आले को चलाने के लिए एक ऐप भी दस्तयाब है। इस ऐप में लर्जिश और फ्रीक्वेंसी की तादाद को अपने मुताबिक ढाला जा सकता है ताकि सुनने वाला वही सुने जो वो सुनना चाहता है। इसलिए इसमें एक म्यूजिक मोड है जिससे लय और रफ्तार को कंट्रोल किया जा सकता है। एक और तरीका भी है जो नींद के दौरान काम आता है और फिर अलार्म जैसी तेज आवाज पैदा करता है। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि आपको किसी के खर्राटों के बाइस जागना पड़े। इस आले की बैटरी की मुद्दत तकरीबन 24 घंटे है, लेकिन किसी ऐसी जगह जहां बहुत शोर हो वहां बैटरी पर ज्यादा असर पड़ता है। इसे इस्तेमाल करने वाले कुछ अफराद का कहना है कि अपनी जिल्द के जरिए इर्द गिर्द के माहौल की आवाज़ों को सुनकर वो दुनिया के साथ खुद को ज्यादा मुंसलिक और आगाह महसूस करते हैं, और ये ऐसा एहसास है जो उन्हें पहले कभी नहीं हुआ। एलिजाबेथ ली के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। व्यू 360 से अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।